Hello everyone, this is Abhishek with class 10 chapter real numbers, and we are going to study about the application of Euclid's division lemma. I have made three topics. First, find HCF by Euclid's division algorithm. Second, fundamental theorem of arithmetic. And third, HCF and LCM by prime factorization method. So we start our classes. Come to the point. There is the application we are using to solve HCF of the two given number by Euclid's division lemma. Here is the question: using Euclid's division lemma, find the HCF of 405 and 2520. Second question 504 and 1188. Now we solve first one. Here we have to find the HCF between 405 and 2520. Already we have learned about the Euclid's division algorithm to solve the HCF. We divide 2520 by 405. We get 405 into 5 5 ja 25, 5 5 ja 25, 5 4 ja 20, multiply 4 5 ja 20, 4 4 ja 16. If we multiply 405 by 5, we get 25, 5 4 ja 20, we get 2025. If we multiply by 6, we get 6 4 ja 24, 6 5 ja 30, 0 in hand 3, 6 4 ja 24, that is we are getting 2430. Then these two are cancelled. We put here 6 5 ja 30 and 6 4 ja 24, we get 0, 12 minus 3 9, here 0. Again remainder is not 0. Then we repeat this process. We divide 405 by 90. 9 4 ja 36. We get 45. Again remainder is not 0. So we divide 90 by 45. 45 2 ja 90. We get remainder 0. The process came to an end. Now the last divisor is 45. Hence the HCF is 45. This is the 45 is the last divisor. Hence our HCF is 45. Come to the second question. We have to find the HCF between 504 and 1188. Let's calculate. Again we start the process of Euclid's division algorithm. We divide the greater number 1188 by 504. We get 5 2 ja 10, 4 2 ja 8, 4 0 0, 5 2 ja 10. Remainder 8 minus 8 0, 8, this one 1. Then remainder is not 0. Repeat the process. 18 2 ja 360. We get 4, 10 minus 6 again 4, or 4 minus 3 1. Again remainder in 0 not 0. We repeat the process. 144. We get 10 minus 4 6 and 7 minus 4 3. Again remainder not 0. We divide 144 by 36. I think in 4 times it will be 0. 4 6 ja 24 in hand 2, 4 3 ja 12 to 14. Remainder is 0. Hence our last divisor is 36.
So HCF is 36. By calculating the HCF by this process is known as Euclid's division algorithm. This process is known as Euclid's division algorithm. Now come to the second topic, that is fundamental theorem of arithmetic. This is fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Here the fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. First we know the prime number and composite number. What is prime number and what is composite number? We know that any number which have only two factors, first is 1 and second is the number itself. Those numbers are called prime numbers. A number which has only two factors, first one and the second one is the number itself. This type of number is known as prime number. We can find out the example. Suppose 2. The number 2 has only two factors. First is 1 and the second is 2. Number 3 has two factors. First is 1 and second is 3. Number 5 has two factors, 1 and 5. Number 7 has two factors, 1 and 7. Hence 2 is prime number, 3 is prime number, 5 is prime number, 7 is prime number. Now come to the point composite number, a number which has more than two factors. A number which has more than two factors is known as composite number. एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर. एग्जाम्पल 4 हैज 3 factors, 1, 2, 4. 6 has 1, 2, 6 is divisible by 1, 6 is divisible by 2, 6 is divisible by 3 and 6 is also divisible by 6. 6 has 4 factors. 8 has 1, 2, 4 and 8. 8 has 4 factors. 10, 1, 2, 5 and 10. 10 has 4 factors. 10 has 4 factors. Here we see that these numbers 4, 6, 8 and 10 has more than 2 factors. Hence we can say that these numbers are composite numbers. Now I translate to Hindi. प्राइम नंबर दैट इज नोन एज अभाज्य संख्या. किसी भी नंबर के अगर दो फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर कहलाते हैं. वो दो फैक्टर कैसे होने चाहिए? किसी भी नंबर के दो फैक्टर, एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो, तो उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर. एग्जाम्पल 2 के दो फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा नंबर वो 2. 3 के दो फैक्टर हैं, फर्स्ट 1 and the another 1 is 3. बट कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. हियर 4 के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर्स हैं. 6 के 4 फैक्टर्स हैं. 8 के 4 फैक्टर्स हैं. 10 के 4 फैक्टर्स हैं. हेंस दिज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर. अब कम टू द डिफिनीशन. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. जितने भी कंपोजिट नंबर है वी कैन एक्सप्रेस देम, हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स.
Here we can see any composite number. Suppose we have 10 composite number, we can write it as 2 into 5. This is the product of primes. We can write 16 as 2 into 2 into 2 into 2. That is product of primes. 18 we can write 2 into 6 into 2 into 3 into 3. Products of prime. We can write 15 as 3 into 5, that is product of primes. We can write 20 2 into 2 into 5. This is product of prime. यानी any composite number can be written as the product of primes. And this factorization is unique. Apart from the order in which the prime factors occur, these numbers are in which place they are kept, there is no issue. We can place 3 here and 3 here and 2 here. There is no problem. The fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. और ये प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है, ये जो सीरीज जो चल रही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारे के सारे यूनिक हैं. ठीक है, यहाँ प्राइम नंबर में जो भी डिजिट हैं उसके ऑर्डर को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. यानी अगर हम चाहें तो यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब आते हैं हम लोग जान गए व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक. अगेन कम टू द एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. यहाँ जितने भी नंबर हैं उनको हम लोग क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है. तो फर्स्ट नंबर है हमारा 140. ठीक है, तो 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने के लिए पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 140 इज डिविजिबल बाई 2. When we divide 140 by 2 we get 70. Again we divide 70. The 70 is divisible by 2, we get 35. Again 35 is divisible by 5, we divide it by 35, we get 7. Now we can write 140 as a prime product of prime factors. This will be 2 into 2 into 5 into 7. The prime factorization of 140 is 2 into 2 into 5 into 7. If we take fourth question, that is 5005. The last digit of the unit digit of this number is 5. This number is divisible by 5. We can write 5 1 ja 5, 0 0, 5 1 ja 5. Again this number is divisible by 11. 11 1 ja 11, 9 ja 99. 11 1 ja 11. Again it is divisible by 7. 13 7 ja 99. 91. We get the prime factorization of 5005 is equal to 5 into 11 into 7 into 13. इसी तरीके से हम लोग 156, 3825 और 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. सपोज कीजिए
कि हमारे पास दो नंबर हैं, फर्स्ट इज ए एंड द सेकेंड इज बी, देन इट इज सेइंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ LCM ऑफ ए बी, LCM ऑफ ए बी, यानी किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM, यानी कोई भी दो नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व करना है we have to, in question number 2 we have to find out the HCF or LCM of the given number and we have to verify the statement given in the question number 2. In question number 2, we have to find out the HCF and LCM of 26 and 91. Here we use the prime factorization of 26 and 91. Now we have given two numbers 26 and 91. First we have to find out the HCF and second LCM. So we do the prime factorization of 26. We get 13 2 जा 26. Prime factorization of 91, 7 divided by 7 divide 91 in times 13. 13 7 जा 91. We get 26 is equal to prime factorization 2 into 13 and 91 is equal to 7 into 13. What is the highest common factor? Highest common factor is the number that is highest and common in both. यानी कि वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और जो दोनों में हाईएस्ट हो। मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 13 है, तो हमारा HCF हो गया 13। अब LCM की बात करते हैं। द नंबर विच इज कॉमन, द नंबर विच इज कॉमन इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड द रिमेनिंग नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी इन दो नंबर में जो प्राइम फैक्टर है वो 13 कॉमन है और 13 के अलावा 13 के अलावा देर इज रिमेनिंग डिजिट 2 and 7 also will be included. 2 into 7. First we will take HCF and then remaining digits. For 26 the prime factor 2 and for 91 we take 7, यानी 13 into 2 into 7, this will be LCM. 13 2 जा 26, 26 into 7, 182. So we get HCF 13 and LCM 182. Now we have to verify the given statement. First we multiply A into B, we get 26 इंटू 91। 26 को 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 26 9 6 जा 54 इन हैंड 5, 9 2 जा 18 5 23। वी गेट 6 6 2 3 6 6। वी गेट
2366. When we multiply HCF into LCM, we get 13 into 182. If we multiply 182 into 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, in hand 2, 3 1 जा 3, 2 5, 2 8 1, 6 6 3 2. We get also 2366. Here we see that A into B is equal to 2366, and the HCF of AB and LCM of AB 2366. It is verified that AB is equal to HCF AB into LCM AB. Now come to the question number 3. Question number 3 state that find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization. यहाँ हम लोगों को दिए हुए 3 नंबर यानी 3 डिजिट का HCF और LCM फाइंड करना है, पता लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके. We have to find out the HCF or LCM by prime factorization method. Come to the question number 3. यहाँ हमें 12, 15 and 21 का LCM और HCF निकालना है. We will do the prime factorization of 12. We get 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 15 3 5 जा 15, 21 3 7 जा 21. We can write 12 as a 2 into 2 into 3, 15 as a 3 into 5, 21 as 3 into 7. HCF will be the highest common factor. वैसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो. यहाँ तीनों में कॉमन डिजिट ओनली 3 3 3, यानी कि हम लोग का HCF हो गया 3. LCM जो तीनों में कॉमन हो विल बी इंक्लूडेड. जो तीनों में कॉमन है वो भी लेंगे, और जो कॉमन नहीं है, जो रिमेन है, जो बच गया है उस नंबर में, उसको भी लेंगे. तो यहाँ हमारे पास 12 का जो कॉमन 12 15 21 का जो कॉमन फैक्टर था 3 ऑलरेडी टेकन. रिमेनिंग 2 into 2, here remaining 5, here remaining 7. That means HCF will be taken, that means 3 is taken only one time, that is HCF, that is common in all 3 numbers, and the numbers which are not common also will be taken. Then we get LCM 3 2 ja 6, 6 2 ja 12, 12 5 ja 60, 60 into 7 420. Hence we get here HCF is equal to 3 and LCM is equal to 420. This method is known as prime factorization method. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is 9. Find the LCM of 306 and 657. In question number 2, we have verified that the product of two number is equal to the product of their HCF and LCM. यानी
क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने वेरीफाई किया है कि किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं HCF of any two number into LCM of any two that number is equal to the product of number। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? HCF is already given two number, that is 9। LCM we have to find and the number is 306 into 657। LCM is equal to 306 into 657 upon 9। We can divide 9 3 is 27 and 9 4 is 36। We get LCM is equal to 657 into 34। मल्टीप्लाई करते हैं 657 को 34 से, तो 657 को जब हम लोग 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? आइए देखते हैं। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, 4 7 जा 28, इन हैंड 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, in hand 2, 4 6 जा 24 plus 2 26, 3 7 जा 21, in hand 2, 3 5 जा 15, 2 17, in hand 1, 3 6 जा 18 plus 1 19। We get 8 2 1 3 7 6 13 3, in hand 1, 9 to 11 1 2, that is 12338 is the LCM। Come to the question number 5। Question number 5, check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये शो करना है कि 6 का पावर n एक कोई नंबर है, कैन एंड विथ 0, जिसका अंत जो है 0 से होता है, यानी जिसको हम सॉल्व करते हैं तो उसके एंड में क्या आता है? 0 आता है, जिसका यूनिट डिजिट जो है 0 आता है। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई नंबर मान लीजिए 2520, क्या 6 कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 है? Here we see that check whether 6 का पावर n can end with 0। We have to show 6 का पावर n, 6 to the power n can end with the digit 0। We know that any number end with 0 if it has 5 as a factor। If the number has no factor as a 5, then it cannot end with 0। Okay, we know that any number
एनी नंबर विच हैज 5 हैज ए फैक्टर मे बी इंड विथ 0, यानी किसी भी नंबर का अगर फैक्टर 5 है तो उसका इंड जो है 0 हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन दिस इज कंपल्सरी दैट दैट नंबर हैज 5 हैज ए फैक्टर इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 6 का पावर n हैज कॉमन फैक्टर एज 5 और नॉट. इफ 6 का पावर n कैन एंड विथ 0, it must have 5 as a factor. But now here we see that if we do the prime factorization of 6 to the power n, we get 2 into 3 power n. यानी we can write 2 का power n, 2 to the power n and 3 to the power n. Here we get 6 to the power n has only 2 prime factor, two and 3 only. Six का power n has only 2 prime factors, that is 2 and 3 only. 6 का power n has no prime factor as 5, and we know that from the fundamental theorem of arithmetic, we know that from the fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, that any composite number has unique prime factorization. So here we see that 6 का power n has no common factor, no prime factor as 5. Hence we can say that 6 का power n cannot end with 0. तो आइए देखते, हमें प्रूव करना है कि 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट. हमें पता लगाना है, वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले हम लोग 6 का पावर n का फैक्टराइजेशन कर लिए. 6 के पावर n का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 का पावर n. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 टू द पावर n. अब यहाँ पर देखते हैं कि 6 का पावर n के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, मनली 2 एंड 3. यहाँ क्लियरली विजिबल है कि 6 का पावर n का कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, यानी नो फैक्टर एज ए 5, यानी इसका फैक्टर 5 है ही नहीं. तो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक. यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यानी उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो जैसा एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सेम रहेगा. हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस नंबर है नो फैक्टर एज ए 5, यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद 0. क्यों? क्योंकि 6 के पावर n का फैक्टर 5 नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द गिवन 2 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. तो वी नो दैट any composite number has more than 2 factors. Here we have to show that this 2 number has more than 2 factors, then itself a composite number. यानी कि दिया हुआ है कि हमें दोनों नंबर को प्रूव करना है, शो करना है कंपोजिट नंबर. तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं.
तो अगर हम लोग इसमें शो कर देते हैं कि दिस टू नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देन वी कैन से दैट दिस टू नंबर्स आर कंपोजिट। तो कम टू द क्वेश्चंस, कम टू द सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब दोनों नंबर में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। तो हम लोगों ने 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1। ये ऑब्वियसली यहाँ क्लियरली विजिबल है कि एक फैक्टर 13 हो गया और एक तो फैक्टर 1 होगा ही, और साथ में साथ ये अंदर का जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा। सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 7 11 जा 77 प्लस 1 78, और 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2। यानी हियर वी सी दैट this number has 3 factors. More than 3 factors. More than this number has, we can see that this number has more than 2 factors. More than 2 factors. First one we can write also multiply 1 2 3 and 30. दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 2 3 13, इसलिए ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस नंबर इज ऑल्सो कंपोजिट। ट्राई करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 कॉमन लेते हैं, हमारा हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 इंटू 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 इंटू प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 6 जा 42 इंटू 24 प्लस 1। 42 में 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 4 4 जा 16 42 2 जा 84। वी गेट 0 8 1 9 1 10। वी गेट 5 इंटू 1008 प्लस 1। वी गेट 5 इंटू 1009। यहाँ क्या होंगे? 5 इंटू 1009 इंटू 1 वी कैन राइट। यहाँ भी इस नंबर के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3। दैट मीन्स ये भी क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इसी बीच मैं ये आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारी जो क्लासेज हैं वो पूरे साल तक चलने वाले हैं, और हम लोग क्लास 10 के जितने भी चैप्टर हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करेंगे। और एक एक क्वेश्चन, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं बतलाऊँगा, और धीरे धीरे जब चैप्टर के अंत में आपको मैं रिवाइज भी करवाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, अभी 2 दिन में एक वीडियो आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, और एक दिन में 2 वीडियो, और कम से कम 1 वीडियो तो डालूँगा ही। तो आप लोग जो है मेरे क्लास के साथ बने रहें, और ये पूरा क्लास जो है मैं
आपके एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, और जो 2 महीने का जो समय बचेगा उसमें मैं आपको पूरे किताब को फिर से रिवाइज करवाऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड with Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time. After how much time they will meet to each other. यानी क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा प्रिंट नहीं हो पाया है, क्वेश्चन ये है, मैं बतला देता हूँ। एक सर्कुलर पाथ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, सपोज कीजिए दिस इज ए सर्कुलर पाथ। सपोज दिस इज ए सर्कुलर पाथ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, Ravi and Sonia started from here. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round. Sonia take 18 minutes to drive 1 round and Ravi takes 12 minutes to drive 1 round. यानी सोनिया जो है इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का समय लेती है, और रवि जो है इस एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स का समय लेता है। क्वेश्चन है कि दोनों इस बिंदु ए से एक ही साथ एक ही समय में स्टार्ट करते हैं। दे विल स्टार्ट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। दोनों एक ही साथ एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। कितने समय के बाद दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से एक साथ मिलेंगे। तो सपोज कीजिए कि किसकी स्पीड, रवि की स्पीड जो है कम है, रवि की स्पीड जो है ज़्यादा है क्योंकि वो 12 मिनट्स का समय ले रहा है, और सोनिया का जो स्पीड है वो कम है क्योंकि वो 18 मिनट्स का समय ले रहा है। तो रवि जो है इस स्टार्टिंग लाइन पर पहले पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां पर दोनों जो हैं स्टार्टिंग लाइन पर एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो दोनों का एलसीएम हो गया 2 × 3 × 2 × 3, यानी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 × 6 यानी 36। यानी कि दोनों जो है आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, यानी 36 मिनट्स के बाद रवि और सोनिया जो है फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो आइए चेक करते हैं कि इस 36 मिनट में रवि ने कितने राउंड ड्राइव किया और सोनिया ने कितने राउंड ड्राइव किया। तो इन 36 मिनट में रवि ने ड्राइव किया 12 3 जा 6, 3 राउंड ड्राइव किया, और सोनिया ने कितने ड्राइव किए, तो 36/18 यानी 2 राउंड ड्राइव किए। यानी रवि के 3 राउंड और सोनिया के 2 राउंड करने के बाद दोनों जो है सेम इसी पॉइंट पर आकर मिल गए। तो टाइम क्या है, 36 मिनट्स। तो टुडे क्लासेज इज ओवर, आज का क्लास ख़त्म हुआ, और कल से हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आएंगे और रियल नंबर चैप्टर का ही एक नया पार्ट जो है हम लोग ऐड करेंगे। तब तक के लिए बाय।